آپ کو بتائیں فیصلاباد میں مفت آٹے ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر نے تقریب کا باضابطہ افتتاح کیا ہے۔ ریاض شاہد چوک میں مفت آٹے کی تقسیم شروع کر دی گئی ہے۔ شہری ماہانہ وار 3 تھیلے حاصل کر سکتے ہیں۔ شہر کے مختلف مقامات پر مفت آٹے کی تقسیم شروع کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر کا کہنا تھا کہ ایک شہری 3 مرتبہ آٹا حاصل کر سکے گا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹریشن کرائی جا سکتی ہے۔ فیصل آباد میں سب سے زیادہ آٹا تقسیم کیا جائے گا۔ گھر میں آپ بیٹھ کے اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں، اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے 8070 پہ لکھیں آٹا اور اپنا آئی ڈی کارڈ لکھیں اور اس کو سینڈ کر دیں۔ آپ کو ایک میسج آ جائے گا کہ آپ اہل ہیں یا نا اہل ہیں۔ وہ میسج لے کے ہمارے سینٹر پہ آ جائیں، جیسے ہم یہاں کھڑے ہیں، یہاں پہ آپ کا ہم آئی ڈی کارڈ اسکین کریں گے، اسکین کرنے کے بعد آپ کو آٹا دے دیں گے۔ شہریوں نے مفت آٹے کی ترسیل کو خوشائند قرار دیا اور پنجاب حکومت کی اس کاوش کو سراہا۔ شہریوں نے باقی اشیاء بھی سستی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ਭਰਾ ਕੱਲਾ ਆਟਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਘਿਓ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਟਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਟਾ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਆ, ਅੱਛਾ। ڈپٹی کمشنر نے مختلف حکام کو سینٹرز پر ضروری انتظامات کرانے کی ہدایت کر دی تاکہ مستحقین کو عزت و احترام کے ساتھ آٹے کے تھلے مہیا کیے جا سکیں۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں محکمہ خوراک نے چکی مالکان کو کنٹرول ریٹ پر گندم کی فراہمی روک دی ہے۔ شہریوں کو سستے داموں آٹا مہیا کرنا مشکل ہونے لگا۔ دوسری جانب سستا آٹا خریدنے کے لیے لمبی لائنیں لگ گئیں۔ تھکم پیل سے آٹا ملنا دشوار ہو گیا۔ فیصل آباد کے ریاض شاہد چوک میں سستے آٹے کے لیے خواتین کی دکم پیل بڑھنے لگی، جس وجہ سے آٹا مہیا کرنا مشکل ہو گیا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے زیادہ جگہوں پر آٹے کی فراہمی ممکن نہ بنائی جا سکی، جس وجہ سے ریاض شاہد چوک میں رش بڑھنے لگا ہے۔ محکمہ فوڈ کی جانب سے چکی مالکان کو کنٹرول ریٹ پر گندم کی فراہمی روکنے سے شہریوں کو سستے داموں آٹا مہیا کرنا مشکل ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں چکی کا آٹا فی کلو 140 روپے تک جا پہنچا۔ چکی مالکان نے محکمہ فوڈ کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ 140 روپے کلو اب جو آٹا فروخت ہو رہا ہے، گورنمنٹ نے ہمیں ایک دن کوٹا دیا تھا، ہم نے وہ عوام کو فراہم کر دیا، اس کی لسٹ جو ہے وہ ہم نے دفتر میں بھیج دی ہے۔ اب جو ہے وہ فلمز کا بتا رہے ہیں بھی آپ جو فلمز میں اس کو اپلوڈ کریں گے، دیکھیے جب تک فلمز اس کو اوپن نہیں ہوگا ہم اس کو کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو ریکویسٹ کی تھی آپ اس طرح کریں، مینول جو کوٹا ہمیں آپ دے رہے ہیں مینول ہم ڈیلی بنا کے آپ کو فراہم کر دیتے ہیں۔ چکی مالکان کہتے ہیں محکمہ فوڈ تعاون کرے تو قیمت 75 روپے فی کلو ہو سکتی ہے، ورنہ مہنگے داموں فروخت پر مجبور ہیں۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر ٹوبا ٹیکسنگ کے شہریوں کو مفت آٹے کی تقسیم شروع ہو گئی ہے۔ ضلع بھر میں ٹرکنگ پوائنٹس اور یوٹیلیٹی سٹورز پر مفت آٹا ملنے پر شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب موسم نقوی کی ہدایت پر مفت آٹا کی تقسیم شروع کر دی گئی۔ ضلع ٹوبا ٹیکسنگ میں 30 ٹرکنگ پوائنٹس قائم کر دیے گئے، جبکہ 52 یوٹیلیٹی سٹورز پر مفت آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ رجسٹرڈ شہری بڑی تعداد میں مفت آٹا لینے پوائنٹس پر پہنچ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب موسم نقوی کے لیے دعا گو ہیں، ان کی وجہ سے مہنگائی کے دور میں 2 وقت کی روٹی کھا سکیں گے۔ حکومتی اقدام کو سراہتے ہیں۔ شکریہ جی، مہربانی جی، انہیں غریباں دا بہت سونا سوچیا، بھلا کر رہا جی، انہوں واسطے اللہ پاک انہوں جزا دے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نو اللہ جزا دے، وہ تے اللہ رحمت کرے۔ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥੈਲੀ ਆਟੇ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ۔ اسسٹنٹ کمشنر نعمان ڈوگر نے آٹا پوائنٹس کا دورہ کیا، انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر بتایا ٹوبا شہر میں 1,10,063 خاندان رجسٹرڈ ہے۔ ہر رجسٹرڈ شہری 8 دن کے بعد 10 کلو گرام کا دوسرا تھیلا حاصل کر سکتا ہے۔ ضلع بھر میں آٹا کی تقسیم بآسانی جاری ہے۔ تحصیل میں تقریباً 1,10,063 بینیفیشری فیملیز ہیں اور آج کی تاریخ میں 10,653 بیگز آئیں گے جن کو ہم تقسیم کریں گے، اور ہر بینیفیشری جو ہے وہ 8 دن بعد یعنی آفٹر 8th ڈے وہ اپنا سیکنڈ بیگ ریسیو کر سکتا ہے۔ ضلع بھر کی تمام فلور ملوں کو گندم فراہم کر دی گئی اور آٹا بر وقت پوائنٹس پر پہنچانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کیمرامین راشد انوار کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، ٹوبا ٹیکسنگ۔ سٹیٹ میں بھی ماہ سیام سے قبل ہی اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ آلو، ادرک اور سبزیوں کی قیمتوں میں ایک ہفتے میں تقریباً 7% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک قریب ہے مگر ریلیف ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ پیاز کی قیمتیں کچھ کم ہوئی ہیں تو ادرک کی قیمت 650 روپے کلو ہو گئی ہے، لہسن 350، ٹماٹر 60، کریلا 160، مونگرے 110، مٹر 90 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں، بینگن 80، گوبھی 50، شملہ مرچ 120،
कद्दू 110, गाजर 50 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। खरीदारों ने हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। जंग में हालिया बारिश और आंधी से 8000 एकड़ पर काश्त गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। महकमा ज़राअत ने सर्वे मुकम्मल कर लिया। हालिया बारिशों और शदीद आंधी के बायस गंदम की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। महकमा ज़राअत ने काश्तकारों के नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए सर्वे का अमल मुकम्मल कर लिया। महकमा ज़राअत के मुताबिक जिला भर में 8000 एकड़ से जायद गंदम की फसलों को नुकसान पहुंचा है। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत नासिर सियाल का कहना था कि गंदम की फसल जमीन पर गिर गई है। बारिश ही एक ही हुई है हमारे पास, इसमें आंधी साथ आई है और तकरीबन पूरे ज़िले में 8 से 9 हज़ार एकड़ जो गंदम है हमारी वो गिरी है, जिसमें कुछ एकड़ ज़्यादा गिरे हैं, कुछ कम गिरे। तो बाकी जो हमारी टाइम पे काश्त थी और जो फसलें जिनमें पोटाश वगैरह भी ज़मींदारों ने डाली थी वो खड़ी है, वो नुकसान नहीं हुआ। असिस्टेंट डायरेक्टर नासिर सियाल का मजीद कहना था कि काश्तकारों को इस मुश्किल से निकालने के लिए महकमा ज़राअत की टीमों को फील्ड में रहने की हिदायत कर दी है। गिरी हुई गंदम को बचाने के लिए आगाही शुरू कर दी गई है। उसके अलावा फसल को पानी लगाने में भी एहतियात करें कि अगर ज़रूरत न हो तो आप पानी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गिरी हुई फसल जो है उसको पानी लगाने से उसका नुकसान ज़्यादा बढ़ जाता है और उसमें उल्ली लग जाती है, फंगस आ सकती है। महकमा ज़राअत के मुताबिक मजीद बारिश न होने की सूरत में गंदम की फसल और पैदावार को बचाया जा सकेगा। ताहम मौजूदा मुल्की सूरत हाल में जहाँ गंदम की पहले ही किल्लत का सामना है, वहीं गंदम को पहुँचने वाले नुकसान से पैदावार में कमी का अंदेशा मौजूद है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। आपको बताएं, विफाकी हुकूमत का कम आमदन और मतवस्त तबके के अवाम के लिए 50 रुपए फी लीटर तक पेट्रोलियम मसनूआत रिलीफ पैकेज देने का फैसला सामने आया है। पेट्रोलियम सब्सिडी में मोटरसाइकिल और रिक्शे के अलावा 800 सीसी समेत दीगर छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करने वाले कम आमदन सारिफीन शामिल होंगे। इस पर आवाम की क्या राय है, आइए आपको सुनवाते हैं। जे ऊँट तो सामने नहीं ला दे तो क्या भार हौला हो जाऊ ऊँट का भी 250 तो 150 तो 200 ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, 250 300 ਤੇ 250 ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਫਰਕ ਪਿਆ, 250 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 50 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸਸਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਲਕਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, 50 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਸਤੇ ਦੇਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਵੇ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇਲ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਗਰ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਰਾਤ ਕਰਨ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। 5 ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਣਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ 550 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। गोजरा की कादिर कॉलोनी, सरदार कॉलोनी, सराज टाउन, मुंगी जेल समेत मुलहका इलाकों के वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एमएनए खालिद वराज ने चोबा रोड अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। शहर की आबादी का बड़ा हिस्सा अंडरपास की सहूलियात से महरूम था। एमएनए खालिद वराज का कहना था कि अंडरपास का मंसूबा 2018 में मंजूर करवाया था, जिसको इमरान हुकूमत ने रोक दिया था। अंडरपास के मंसूबे के लिए फंड्स जारी हो चुके हैं। टोबा रोड की तामीर पर 21 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि मिशन रोड ता फन शाह तकिया कारपेट रोड 16 करोड़ की लागत से तामीर किया जाएगा। अप्रैल के पहले हफ्ते में तरक्याती काम शुरू हो जाएंगे। 13.5 करोड़ की लागत से मुख्तलिफ इलाकों में टफ टाइल का काम जारी है। बल्दिया के लिए मशीनरी के लिए 22 करोड़ रुपए की मंजूरी हो चुकी है। सूबाई आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से ऑनलाइन सेल से भी मदद ली जा रही है। 22 मार्च तक जांच पड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराज़ात 3 अप्रैल तक दायर किए जा सकेंगे। वोटर्स और उम्मीदवार एतराज़ दायर करवा सकेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 4 अप्रैल को जारी करेगा। उम्मीदवार 5 अप्रैल तक अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर 6 अप्रैल को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करेगी। पार्टी टिकट जमा करवाने वालों को पार्टी निशान, बाकियों को आज़ाद निशान अलॉट होगा। 30 अप्रैल को पोलिंग होगी। आपको बताएं, फैसलाबाद में मखसूस नशिस्तों की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद से खलील ताहिर सिंधु की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई है।
बाकी का सिलसिला जारी है। 22 मार्च तक ये सिलसिला मुकम्मल कर लिया जाएगा। पंजाब की 74 मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, TLP और दीगर जमातों की खवातीन और अक़लियती उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की गई। सरदार खलील ताहिर सिंधु, शुमाइला राना, कोसर जावेद, अलमारूफ बीबी वडेरी, सबा सादिक एडवोकेट की कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल हो गई। हिना परवेज भट्ट, महफिश सुल्ताना, सानिया आशिक, ज़ेबुल निसा, एवान, सलमा भट्ट और रहीला खादिम हुसैन के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल की जा चुकी है। रवा माली साल की तीसरी सामाही अपने इख्तिताम के करीब पहुंच गई है, मगर कौमी खजाने से तनख्वाहें वसूल करने वाले सरकारी मुलाजिमीन ने ताहाल साल 2022 की इनकम टैक्स रिटर्न जमा न करवाई। फैसलों के 5000 से ज्यादा मुलाजिमीन ताहाल नॉन फाइलर्स की फहरिस्त में मौजूद हैं। FBR मुतलका अफसरान और मुलाजिमीन से इनकम टैक्स को शुआरे जमा करवाने में नाकाम है। ताहम FBR हुकाम के मुताबिक माहाना 50,000 रुपये या इससे ज्यादा तनख्वाह वसूल करने वाले मुलाजिमीन इनकम टैक्स को शुआरे जमा करवाने के पाबंद हैं। नॉन फाइलर्स मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुतलका इदारों के सरबराहान को मुरासिले भिजवाए जा रहे हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन झंग जोन की जानिब से रवा माली साल के पहले 8 माह के दौरान सेल्स टैक्स चोरी के खिलाफ 21 कार्रवाइयां हुई। केसेस में टैक्स रिकवरी का तखमीना 700 मिलियन रुपए लगाया गया। 5 केसेस की तहकीकात ताहाल मुकम्मल न हो सकी। फैसलाबाद में डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन की टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कार्रवाइयों में टैक्स रिकवरी का तखमीना 700 मिलियन रुपए लगाया गया। मुतलका अफराद शहरियों से सेल्स टैक्स वसूल करते हैं, मगर कौमी खजाने में जमा नहीं करवाया जा रहा था। इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक 5 कार्रवाइयों में तहकीकात ताहाल जारी हैं। टैक्स चोरों से रिकवरी के लिए इकदाम भी जारी हैं। शहरियों से फ्रॉड करके करोड़ों रुपए हथियाने वाला पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार गिरफ्तार हुआ है। हवलदार पेट्रोलिंग पुलिस मलिक असगर फैसलाबाद में तैनात है। मलिक असगर ने कई शहरियों से गाड़ियों की खरीदो फरोख्त कीमत में फ्रॉड किया। गिरफ्तार एहलकार के खिलाफ फैसलाबाद के 5 थानों में फ्रॉड के मुकदमात दर्ज हैं। थाना रजाबाद पुलिस ने मलिक असगर को अमानत में खयानत के मुकदमे में गिरफ्तार किया। मुलजिम एहलकार मलिक असगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। फैसलाबाद के 16 SHOs के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी हो गए हैं। SHO थाना मिल्लत टाउन जिशान खालिद रंधावा, SHO थाना डिजकोट राना राशिद महमूद को मुअत्तल कर दिया गया। CPO अली नासिर रजवी ने SHOs की तकर्रुरियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सब इंस्पेक्टर हमाद यूसुफ SHO थाना मिल्लत टाउन, सब इंस्पेक्टर आसिफ नदीम बद थाना चकझुमरा, सब इंस्पेक्टर अली उमर सदर तांदियावाला, सब इंस्पेक्टर सदीक चीमा थाना फैक्ट्री एरिया, सब इंस्पेक्टर अरसलान बारी थाना समनाबाद, सब इंस्पेक्टर अली हसनैन थाना रेल बाजार, इंस्पेक्टर राना उमर दराज खान को SHO थाना सदर फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर राय आसिफ खान थाना सिटी तांदियावाला, इंस्पेक्टर राना मजहरुल हक थाना गढ़, सब इंस्पेक्टर उमर जावेद थाना गढ़, सब इंस्पेक्टर असद अली थाना मुरीदवाला, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान को SHO थाना सतियाना तैनात किया गया। इंस्पेक्टर खालिद महमूद थाना सिटी जड़ावाला, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद काशिफ थाना बहलक, उमर सरफराज मंसूराबाद, परवेज खालिद थाना साहियावाला, बाबर वजीर को SHO थाना तरखानी लगा दिया गया। फैसलाबाद में ड्यूटी से गैर हाजिर एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए शिकंजा तैयार कर लिया गया है। CPO अली नासिर रजवी ने गैर हाजिर एहलकारों के ड्यूटी पर वापस आने के लिए SOPs जारी कर दिए हैं। 3 दिन तक गैर हाजिर होने वाले एहलकार टाउन SPs की इजाजत के बगैर ड्यूटी वापस ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। 7 दिन की गैर हाजिरी पर एहलकार को SSP ऑपरेशंस के सामने पेश करना पड़ेगा। 10 दिन की गैर हाजिरी पर CPO के सामने पेश हुए बगैर ड्यूटी ज्वाइन नहीं की जा सकेगी। सिटी पुलिस ऑफिसर अली नासिर रजवी ने SOP के खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। पुलिस मुलाजिमीन जराइम के खात्मे के साथ साथ माशरे की ज़हनी नशोनुमा में भी पेश है।
टेक्सिंग के थाना भुसी के तैनात SHO इंस्पेक्टर अहमद अदनान तारिक महकमा पुलिस के लिए मिसाल बन गए। किताबें और बच्चों के लिए कहानियां लिखना उनका शौक है। इसकी तकमील के लिए 50 किताबें और 3500 कहानियां लिख डाली। कहते हैं अवाम की खिदमत के साथ साथ वक्त निकाल कर किताबें लिखी। ने कहा जी कि लड़ाई लड़ते हैं सारे पुलिस वाले, मैं भी लड़ रहा हूँ, SHO तो मैं हूँ ही, लेकिन ये कि बच्चे जो हैं बजाय उनके हाथ में कलाशनकोफ जाए, बेहतर है कि हम उनको अच्छी कहानी दें। इंस्पेक्टर अहमद अदनान तारिक का कहना है कि बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए किताबें लिखी, जहां उनको रहन सहन के तरीके, सकाफत और दीन की मालूमात खूबसूरत अंदाज से दी गई। बच्चों को फैंटेसी स्टोरीज, मज़े की कहानियाँ, ट्रैवलिंग मुख्तलिफ मुल्कों में, और फिर आखिर पे जब वो मेरी ट्रांस में हों तो फिर एथिकल लेसन मीन्स कि जब वो बड़े हों तो इसको अडॉप्ट करें, वो अच्छे इंसान बनेंगे तो अच्छे मुसलमान खुद बखुद ही बन जाएंगे। तहरीरें लिखने पर अहमद अदनान तारिक को नेशनल लिटरेरी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। उनका कहना है पुलिस का सॉफ्ट इमेज सामने लाने के लिए कोशिश जारी है। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। आपको बताएं, फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर तमाम आमद रमज़ान के सिलसिले में कन्वेंशन हुआ। इस्तकबाल रमज़ान कन्वेंशन डिविजनल पब्लिक सेक्रेटरीट अमीन बाजार में मुनक्किद किया गया। तकरीब की सदारत डिविजनल सदर प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की। इस्तकबाल रमज़ान कन्वेंशन में डिविजनल जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद यासिर काजी अलमतनी, मौलाना बहादुर अली रिजवी और अहमद निसार कादरी शरीक हुए। डिविजनल सदर PST मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत रमज़ानुल मुबारक में मसनूई महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम करे। फैसलाबाद में सहर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति लाया रमजान बचत ऑफर, देखिए इस रिपोर्ट में। महंगाई के इस दौर में सहर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल लाया जबरदस्त रमजान ऑफर। रमजान के बाबरकत महीने में सहर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति लाया 5 लीटर के पैकेट के साथ 1 किलो मुफ्त चीनी। ऑफर की इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद CEO सहर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल शेख नबील निसार ने केक काट कर किया। इस मौके पर CEO सहर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल शेख नबील निसार का कहना है कि हर 5 लीटर के पैकेट के अंदर 1 किलो चीनी मौजूद होगी और हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये ऑफर मौजूद है। मेरा नहीं ख्याल पूरे फैसलाबाद में इससे अच्छी ऑफर किसी ने दी है। ये 1 केजी चीनी हमने साथ लगाई है और बेहतरीन पैकिंग के साथ आप बॉक्स खोलेंगे उसके अंदर ही आपको चीनी मिलेगी, ना दुकानदार के पास रहेगी। आप खुद परचेज करें, बॉक्स लें और आपको चीनी घर साथ मिलेगी। ये इतनी महंगाई हो गई है, जो आम आदमी है, जो पिसा हुआ तबका है, सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और अपना प्रॉफिट मैक्सिमम जो है ना वो कम करके लोगों तक रिलीफ पहुँचाने की कोशिश की है। RSM सहर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति मोहम्मद इरफान का कहना था कि रमजान के महीने में हर सहर ऑयल खरीदने वाले को चीनी बिल्कुल मुफ्त मिलेगी, जो कि इस महंगाई के दौर में सिर्फ सहर अपने सार्फिन को ये ऑफर मुहैया कर रहा है। फैसलाबाद में ना अल्हम्दुलिल्लाह 5000 शॉप पे हमारा स्टॉक अवेलेबल है चीनी वाला। तो मैं लोगों से करूँगा कि यार आप ना चीनी वाला स्टॉक लें। गियान ऑयल में ना 1 किलो चीनी हम फ्री दे रहे हैं और ओवरऑल जो कंज्यूमर है उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है। और हमारी कोशिश है फैसलाबाद में हम अच्छा घी और खाने के लिए दें लोगों को और साथ फ्री चीनी दे रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने केक कटिंग तकरीब में शिरकत की और सहर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की इस ऑफर को सराहा। कैमरामैन मोहम्मद मौजम के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में पाक व्हील्स ने गटवाला कमर्शियल हब में कार मेला सजा दिया है। फैसलाबाद में पाक व्हील्स ने गटवाला कमर्शियल हब में कार मेले का इनेकाद किया। कार मेले में मुख्तलिफ ब्रांड्स की कारें खरीदो फरोख्त के लिए पेश की गयी। सिटी 41 भी पाक व्हील्स की जानिब से मुनक्किदा कार मेले का मीडिया पार्टनर बन गया। शहरियों की बड़ी तादाद कार मेला में पहुँच गयी। शहरी कहते हैं कि अपनी पसंदीदा कार खरीद सकते हैं आसान साथ में और अच्छी कीमत में भी दस्तयाब है। फैसलाबाद की जो इस टाइम इंडस्ट्री के लिए सबसे एक बेहतरीन पॉइंट बना लोगों के लिए, तो यहाँ पर आके फेस टू फेस गाड़ियाँ ले रहे हैं और पाक व्हील ने या जो भी इस टाइम यहाँ पे काम कर रहे हैं ब्रांड, उन्होंने जो प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराई है हमारे फैसलाबाद के लिए एक वन ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म है। पाक व्हील ऐप वगैरह उधर से गाड़ी खरीदें तो वैसे मुनासिब रेट लगे, लेकिन यहाँ पे उस हिसाब से थोड़े से ज़्यादा रेट लगे हुए हैं। तो बाकी लड़के आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये है कि शायद ये ऑटो शो है इसलिए ज़्यादा आवाम इकट्ठी हो रही है, लेकिन ये ऑटो शो नहीं है, दरअसल सेल परचेज है गाड़ियों की। फैसलाबाद के मुख्तलिफ शोरूम्स की जानिब से मेले में गाड़ियों की नुमाइश की गई। शायकीन की कसीर तादाद ने शिरकत की और पसंदीदा गाड़ियों के साथ फोटोज भी ली। शहरियों की जानिब से कार मेले के इनेकाद को सराहा गया। मजीद कहा कि ऐसे इवेंट्स बहुत अहमियत के हामिल हैं, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। इसमें जो है वो ऐसा कि थर्ड पार्टी का जो कॉन्टेक्ट है वो मतलब खत्म हो जाता है, जैसे डीलर्स वगैरह होते हैं, तो एग्जैक्टली आमने सामने दोनों पार्टीज हो जाती हैं, तो उसमें आसानी रहती है फिर सेलिंग और परचेजिंग दोनों में। कार मेले में पुरानी नई तमाम किस्म की गाड़ियां भी मौजूद हैं। कार मेले में लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई। कैमरामैन वहीद के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में पंजाब कॉलेज के प्रोजेक्ट एंट्री टेस्ट के ज़ेरे साया सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का इनेकाद हुआ।
पंजाब कॉलेज के प्रोजेक्ट स्टेप एंट्री टेस्ट के तहत मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिले के ख्वाहिशमंद तालिब इल्मों के लिए सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का इनेकाद किया गया। इस हवाले से शहर भर में पंजाब कॉलेज के मुख्तलिफ कैंपसेज में टेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें मजमूई तौर पर 9000 से ज्यादा तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया। टेस्ट में पास होने वाले मजमूई तौर पर 3000 से ज्यादा तालिब इल्मों को मुख्तलिफ नौइयत की स्कॉलरशिप दी जाएंगी। स्टेप एंट्री टेस्ट के कोऑर्डिनेटर हाफिज अख्तर हुसैन का कहना था कि स्टेप बेहतरीन एंट्री टेस्ट प्रोग्राम बन चुका है। तालिब इल्मों को इसके बहुत सारे फवाइद हासिल होंगे। इस टेस्ट के तहत 3000 बच्चों को फ्री स्कॉलरशिप दी जाएंगी। टेस्ट में शिरकत करने वालों को फीस में 15% राहत दी जाएगी। टेस्ट में 80% नंबर लेने वालों को 25% राहत की जाएगी। स्टेप टेस्ट पास करने वाले तालिब इल्म मेडिकल और इंजीनियरिंग के शोबों में दाखिला ले सकेंगे। पंजाब कॉलेज ने पहले भी मियार तलीम बुलंद करने के लिए इकदाम किए हैं और आइंदा भी जारी रहेंगे। और इसी तरह वो जो नॉन पंजाबियन स्टूडेंट हैं पंजाब कॉलेज के अलावा और इदारों में पढ़ रहे हैं, वो अगर इस टेस्ट में 80% मार्क्स हासिल कर लेते हैं तो उनकी जो फी है वो 25% जो है वो लेस हो जाएगी। गुज़िश्ता कई सालों से पंजाब कॉलेज का स्टेप एंट्री टेस्ट प्रोग्राम तालिब इल्मों में खासी अहमियत अख्तियार कर चुका है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ हाशिर वड़ाइच, फैसलाबाद। फैसलाबाद में पासवान टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम योम पाकिस्तान और तकसीम इस्नाद के हवाले से तकरीब हुई। बात करेंगे मोहम्मद अली नारू से। अली, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पासवान टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में योम पाकिस्तान के हवाले से और तलबा में तकसीम असनाद के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया है। तकरीब की सदारत पासवान ग्रुप के चेयरमैन मेजर मोहम्मद शाह नवाजुल हसन ने की है, जबकि तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी चौधरी अल्ताफ़ अहमद ETO एक्साइज के जो हैं वो शरीक हुए हैं। तलबा को 51 तलबा में मुख्तलिफ कोर्सेज़ मुकम्मल करने वालों में असनाद तकसीम की गई हैं। मेजर मोहम्मद शाह नवाजुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, तालीम तो दी जाती है, लेकिन टेक्निकल तालीम और बाद में बच्चों को जो है वो अपना रोज़गार कमाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ऐसा है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में लगे रहते हैं और जी मैंने FA कर लिया, मैंने BA कर लिया, मैंने MA कर लिया, मैंने ये सेकंड MA भी कर लिया, और जब वो डिग्रियां लेके जॉब के लिए जाते हैं तो फिर पता चलता है कि वो कहते हैं ये नहीं, हमें तो आप बताएं कि आपको हुनर क्या आता है। और यहाँ पे जाके उनके जो सारी पढ़ाई की होती है वो बहुत अफसोस करते हैं ये क्या हुआ। तो मैंने जब आर्मी छोड़ी तो मैंने कंप्यूटर सीखा और सीखने के बाद यही आया कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आगे में आने वाली है। यानी अच्छे तकरीबन 31-32 साल पहले मैंने ये काम शुरू किया था। मैं 1991 में रिटायर होकर आया हूँ और फिर कंप्यूटर को हमने अडॉप्ट किया तो सब ने मजाक उड़ाया कि ये तो गेमें खेलने की चीज़ है, यहाँ इसको किसी ने पूछना नहीं है और ये साल 2 साल में सब अदारे बंद हो जाने हैं। लेकिन मैं कायम रहा, मैंने कहा नहीं, ये हमने इसी में ही काम करना है। और वो जब अल्लाह ताला ने हमारा अदारा कामयाब किया और कुछ पैसे फालतू बचे तो फिर दिल में ख्याल आया कि मैंने तो चलो कर लिया है, लोगों के लिए भी काम करूं। तो उसके ऊपर ये हमने यहाँ पर पासवान टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर का अदारा बनाया। शुरू में इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी 4 क्लासेस इसमें चल रही थी। ये मज़ीद जगह मिल गई तो हमने इसमें तमाम क्लासेस जो कि हुनर की क्लासेस कह सकते हैं कि हर जो दुकान है वो वहाँ पे इन लोगों की ज़रूरत है, तो इनको ये सिखाया। बिल्कुल, सिखलाने का अमल जारी है। चौधरी अल्ताफ़ अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब, तालीम दी जाती है, फ़नी तालीम दी जा रही है, हुनरमंद बनाया जा रहा है नौजवानों को। आज भी एक खेप तैयार होकर जाएगी, मुआशरे में हिस्सा बनेगी मुआशरे का, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहूँगा कि मेजर शाह नवाजुल हसन साहब एक फ़र्द का नाम नहीं है, एक शख्सियत का नाम है। इनको अल्लाह ताला ने इस काम के लिए चुन लिया। दौलत और लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस तरह के विजन, इस तरह की सोच शायद बहुत कम लोगों में है। जिस तरह मेजर साहब ने बताया कि फ़नी तालीम, डिग्रियाँ तो लोग MA MSc फ़र्क फिर रहे हैं, ये बच्चे फ़ौरन अपनी अपनी शॉप खोलेंगे, हुनर आउट ऑफ कंट्री जाएंगे और मुल्क के लिए भी रेवेन्यू और अपने लिए भी। ये बहुत ही मेजर साहब का अच्छा विजन है। मैं कहता हूँ कि ऐसी शख्सियात अगर हर शहर में 1-2 हो तो पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ऐसी बहुत शख्सियात। शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।